Welcome, dear students. Myself is Sumit Joshi, and today we'll be doing the 8th chapter, Human Health and Disease. In today's lecture, we'll be talking about a syndrome known as AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, which is caused by a virus known as HIV, human immunodeficiency virus or human immunovirus. A very important topic for examination purpose as well as for competitive examination purpose. In the last lecture, we talk about autoimmunity and allergies. ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी इम्यूनिटी अपनी सेल्फ सेल्स को फॉरेन सेल समझने लग जाएं और उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने लग जाएं तो उसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अब इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक आपके हैं, एक एड्स और एक कैंसर. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट the disorder, the syndrome, which is known as acquired immunodeficiency syndrome. आप सभी लोगों ने acquired immunodeficiency syndrome के बारे में सुना भी है, कुछ बेसिक बातें आप इसकी जानते भी हैं. AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. As it indicated by its name, it is basically not a disease, it is basically a syndrome. There is a difference between disease and syndrome. Which type of syndrome is this? This syndrome can deficient our immunity or our acquired immunity. Acquired immunity के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे. वो immunity जो हम अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और जो हमें बाय बॉर्न मिलती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं. द मेन इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और एड्स एक इतना इंटेलिजेंट वायरस है, सॉरी HIV एक इतना इंटेलिजेंट वायरस है कि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही डिफिशियंट कर देता है. सो दैट द नेम is acquired immunity deficiency syndrome. एक ऐसा सिंड्रोम जो डायरेक्ट हमारी इम्यूनिटी को वीकन करता है, कमज़ोर करता है, और जब हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल ख़त्म करता है तो किसी भी डिजीज़ से, छोटी से छोटी डिजीज़ से इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है. 1981 में इस एड्स का पता चला था, और अभी तक 1981 से अराउंड 40 इयर्स हो चुके हैं, और अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन या कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बन पाई है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट वायरस. और बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की डेथ जो है वो एड्स की वजह से नहीं होती है, बल्कि जब एड्स हो जाता है तो किसी भी डिजीज से इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है. छोटे से छोटा फीवर भी जो है वो भी लीथल हो सकता है. सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी deficiency syndrome. It is usually caused by a virus known as HIV or human immunovirus or human immunodeficiency virus, which is a group of virus known as retrovirus. So HIV is usually a retrovirus. क्या काम करता है ये? It can destroy the immune system over a period of time. ये एक ऐसा वायरस है जिसे कोई जल्दीबाजी नहीं है.
ये जब किसी इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करता है तो ये बहुत लंबा टाइम लेता है, सालों लगाता है HIV पॉजिटिव से को एड्स में कन्वर्ट करने में। It was first reported in 1981 and अभी हमने बोला था कि HIV is usually a retrovirus and the meaning of retrovirus is reverse transcription, have the ability of reverse transcription. What is reverse transcription? As we know that there is a phenomenon known as central dogma. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप सेंट्रल डोगमा and it is sometimes also known as central dogma of molecular biology. Central dogma is usually the backbone for life and central dogma के अंदर हम कुछ particular process की बात करते हैं. First process is this one is DNA and this one is also DNA. So the first procedure included in central dogma is the formation of new DNA from old DNA. The formation of DNA from DNA, which is known as replication. The second process, from this DNA, RNA is formed. And we basically talking about the messenger RNA, and this process is known as transcription. And from this mRNA, this one is the messenger of DNA, protein is formed. And this process is known as translation. So these three processes are usually the backbone for life: replication, transcription, and translation. These three together known as central dogma. But somehow in some of the viruses, the DNA is usually not present. So the genetic material is RNA. As we know that the genetic material is usually DNA, but in the absence of DNA, RNA also act as genetic material, as in the case of some of the RNA virus. As we know that on the basis of the genome, the viruses are of either DNA virus having DNA as genetic material or RNA virus having RNA as the genetic material. Both the genetic material RNA and DNA do not present together in RNA. If DNA is present, there is no RNA in virus. If RNA is present, then there is no DNA. So in case of some of the RNA virus, a reverse process takes place in which the mRNA can form DNA. This one is the reverse process, and this process is known as reverse transcription. So what is transcription? Transcription is the formation of mRNA or the formation of RNA from DNA. तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स मतलब आरएनए से और फ्रॉम द एन एमआरएनए टेम्पलेट द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो जो भी आरएनए वायरस हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम आरएनए, they are known as the retrovirus. So it means HIV virus are usually an RNA virus in which the genetic material is RNA, and from this RNA a DNA is formed. From by the process of reverse transcription, and for reverse transcription an enzyme is needed which is known as the reverse transcriptase enzyme, and the HIV virus have reverse transcriptase virus which help in the process of reverse transcription to form an complementary DNA of RNA template, and this process is known as reverse transcription. And the viruses which
ऐसे वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं उन्हें हम जनरली रेट्रोवायरस बोलते हैं. सो दिस वन इज एन रेट्रोवायरस. सो द जेनेटिक मटेरियल इज यूजुअली आरएनए. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है. इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल आरएनए का नहीं होता बल्कि 2 कॉपीज ऑफ आरएनए प्रेजेंट होती है. 2 आरएनए की कॉपीज पाई जाती हैं विच इज इनक्लोज्ड बाय एन एनवलप. जो ये एनवलप है इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन. क्योंकि आप किसी भी वायरस को देखेंगे, जब भी आप किसी वायरस को देखेंगे तो वायरस हमेशा 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा. एक इसमें होगा प्रोटीन का कोट या प्रोटीन का एनवलप और दूसरा होगा जेनेटिक मटेरियल. ये किसी भी आप वायरस को देख लें. और जेनेटिक मटेरियल में भी या तो ये डीएनए होगा या ये आरएनए होगा. इफ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन्हें हम बोल देंगे डीएनए वायरस. अगर आरएनए होगा तो क्या बोल देंगे, आरएनए वायरस. तो कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि एक तो ये रेट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा. दूसरा ये आरएनए वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा आरएनए होगा. अगर हम इस एड्स की ये कितना पेंडेमिक है, कितना प्रॉब्लमेटिक है, इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था 1981 में और 35 मिलियन और मोर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर यूजुअली एड्स पेशेंट एंड एवरी ईयर अराउंड 2 मिलियन पीपल डाइंग फ्रॉम दिस डिजीज. हर साल 2 मिलियन या उससे ज़्यादा लोग एड्स की वजह से, HIV वायरस की वजह से डेड हो जाते हैं. और हर साल 2.5 to 3 मिलियन न्यू केसेस अराइव्ड. HIV के या एड्स के 2.5 मिलियन से 3 मिलियन नए केस हर साल बढ़ते हैं. हमने पहले भी बोला कि ये जो HIV वायरस है this one is a very intelligent virus because it can keep on carrying the enzyme reverse transcriptase which is responsible for reverse transcription or responsible for the formation of DNA from RNA. So the genetic material is 2 copies of RNA enclosed by an envelope. अगर हम ये देखें कि किस तरीके से ये अपना काम करता है, ये हम एक शॉर्टकट में भी आपको बता रहे हैं, फिर डिटेल में भी बताएंगे. लेट अस सपोज एक HIV वायरस है, जिसके अंदर RNA है और बाहर प्रोटीन कोट है. जेनेटिक मटेरियल इसका RNA है. और ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या होता है, प्रोटीन कोट एंटर नहीं करता. ये अगर होस्ट सेल है तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो केवल इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, RNA है, वही अंदर एंटर करेगा. प्रोटीन कोट जो है वो बाहर ही रह जाएगी. जो प्रोटीन का कवरिंग होती है वो कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं करती. केवल जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है. तो यहाँ भी वही केस हुआ. ये HIV वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन जैसे ही ये किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट में आते ही ये अपने RNA को होस्ट सेल के अंदर प्लेस कर देगा. सो द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV वायरस RNA इज प्लेस्ड विद इन द होस्ट सेल. और जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर आएगा, क्योंकि इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हमने नाम दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमने भी आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम mRNA. तो यहाँ भी इसने यही किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया. एंजाइम कौन सा जरूरत थी यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उससे इसने क्या बना लिया, एक DNA बना लिया. वो DNA जो RNA से बनता है इज नोन एज cDNA. C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री DNA. कौन सा DNA है,
complementary DNA. Why it is known as complementary? Because it can complement RNA, क्योंकि जिस RNA से ये बना या जिस mRNA से ये बना, ये उसी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ना क्या हुआ, आप समझ गए ना। सबसे पहले एक एक वायरस है, HIV वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है और बाहर से प्रोटीन कोट है। ये जैसे ही किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएगा, होस्ट सेल के अंदर ये अपने RNA को प्लेस कर देगा। इसका RNA होस्ट सेल के अंदर जैसे ही गया तो ये क्या काम करेगा, होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ये होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ये क्या काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, जिस डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे। ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा और जब ये डीएनए, फिर वही देखिए सेंट्रल डोग्मा आ गया, डीएनए से पहले आरएनए से डीएनए बना, अब डीएनए से फिर से आरएनए बन रहा है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो दो टाइप के आरएनए बन जाएंगे, एक तो कॉमन एमआरएनए बन जाएगा और एक जीनोमिक यानी कि जो इस वायरस का जीनोम आरएनए है वो बन जाएगा। जो कॉमन आरएनए है ये ट्रांसलेशन करेगा, सेंट्रल डोग्मा की अगली प्रोसेस ट्रांसलेशन होती है जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है। जब ये ट्रांसलेशन करेगा तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और इस प्रोटीन को हमने नाम दे दिया वायरल प्रोटीन। इसने वायरल प्रोटीन बना दिया और एक इधर जीनोमिक आरएनए बना था, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिक्सअप हो जाएंगे और नए वायरस बन जाएंगे। इस तरीके से एक ही सेल में मिलियंस ऑफ न्यू वायरस आर फॉर्म्ड और ये मिलियंस ऑफ न्यू वायरस जो हैं ये मिलियंस ऑफ न्यू होस्ट सेल्स जो हैं उनको डैमेज करने का काम करना शुरू कर देंगे। तो ये एक इसका जनरल प्रोसीजर है कि किस तरीके से HIV वायरस जो है वो फंक्शन करता है। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो इसके ट्रांसमिशन की कुछ जनरल फॉर्म्स हैं, किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन इज जनरली अकर्स बाय नंबर 1 द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में कोई इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं तो उनमें HIV हो जाता है ना। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन जो है तो उस पे एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम बोलें द पीपल हु आर एट हाई रिस्क of getting this infection includes the individual who have multiple sexual partners or the drug addicts who can take drugs intravenously and individuals who require repeated blood transfusion and children born to an HIV infected mother। ये वो लोग हैं जिनमें इसका HIV होने का, एड्स होने का हाई रिस्क है। तो ये इसके ट्रांसमिशन की जो तरीके हैं उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन है और दूसरा है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत थी और उसे कंटामिनेटेड HIV वाला ब्लड मिल गया तो उससे भी उसको ये इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स बाय ड्रग एब्यूसर्स, हम देखते हैं कि जो ड्रग एब्यूसर्स होते हैं वो IV इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं कई बार थ्रू इंजेक्शंस। तो वो एक ही इंजेक्शन का यूज़ करके कई सारे लोग ड्रग ले लेते हैं और अगर एक इंडिविजुअल उसमें से कोई भी HIV पॉजिटिव हो, एड्स पेशेंट हो, तो उसके ब्लड से सभी के कांटेक्ट में आके ये HIV जो है वो सभी को हो जाएगा। and finally from infected mother to her child through placenta। हम जानते हैं कि मदर से जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो मदर की वॉम में प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है। द प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू और इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर और जो फिटस है वो आपस में जुड़े रहते हैं और अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी ये HIV मिल जाएगा। किधर से मिल जाएगा? प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये कुछ HIV के
ट्रांसमिशंस की टेक्निक्स हैं। सो एक जनरल आइडिया HIV एड्स के बारे में भी आपको दिया। अभी कुछ और डिटेलिंग में हम इसके जाएंगे, कौन कौन से कौन कौन से हम जो मेडिसिन्स हैं उसका यूज़ करते हैं इस HIV के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, किस तरीके से इसका इन्फेक्शन होता है, कैसे ये इतना एक इंटेलिजेंट वायरस है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।